like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. That is Nikki Nogat and this is me Nikita Mehra, and today's video is going to be about the counseling session जो कि NIFT के through अभी start हुआ है 28 April से 8 May. That is the duration in which you can register for undergraduate and postgraduate programs in NIFT. So yeah, let us start with it. I am currently a student of BF Tech first year in NIFT Mumbai. So the last year I have also gone through all this experiences and all the things counseling ke process ki. So I am like here to share my experience, as well as I'm here to give some advice and tips that how you can do your make best out of your counseling. So what does counseling means in it? So basically counseling में आपको अपने कुछ certain documents हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको वहाँ पे submit करने हैं, upload करने हैं, and the next page which will occur is like your preferences in which campuses you want to go. तो जितने भी 14-15 कैंपसेस हैं, इस बार तो दामन में भी खुल गया है न्यू कैंपस, बिकॉज हमारी काफ़ी फैकल्टीज़ वहाँ जा रही हैं पढ़ाने निफ्ट मुंबई की. सो इस साल तक अच्छे से मे बी वो अच्छे से शुरू हो जाए. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड प्लेस. एंड आप अकॉर्डिंग टू योर रिसर्चेस, एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कौन से कैंपसेस को ऊपर रखना है, सो आई विल जस्ट गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि कौन से कैंपसेस आर द टॉप 5 कैंपसेस ऑफ निफ्ट फॉर बोथ BF Tech and BDS. All this document and this preference list you have to submit 8 मई की मिडनाइट तक आप लोग सबमिट कर सकते हैं. उससे अगर आपने लेट करा तो जो भी आपके अनश्योर प्रेफरेंसेस हैं जो आपने उसमें करे हुए हैं वो ही अपने आप लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट अगेन. सो प्लीज़ डू नॉट टेक दिस लाइटली. पहले ही कर लेना, 2-4 दिन पहले ही लॉक करके जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स. Question arises कि from where are you going to register for this NIFT counseling. So हमेशा ओरिजिनल साइट पे जाना nift.ac.in. उसके बाद एडमिशन्स का एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उसको क्लिक करना है, एंड देन यू विल गेट अ लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक. फेक साइट में मत बिलीव करना, वो ही एक साइट है जो सारे आपको काउंसलिंग वगैरह का कराएगी. आई ऑल्सो प्रोवाइड अ लिंक ताकि आप लोग ऐसे एंड के डेज में से कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. And with that you have to put your application form number which was given in your admit card the time when you came and give your exams. तो वो वाला नंबर डालना है, एंड देन योर बर्थ डेट का जो एक पासवर्ड भी गिवन होगा, आपको मेल आई होगी, तो उसके बाद आप लोग उसको लॉगिन करेंगे. सो आपका एक रजिस्टर्ड आपका एक पोर्टल टाइप बन जाएगा, और उसके बाद जाके आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे in order to perform your counseling. So the first document which you are required is with the mark sheet, qualifying mark sheet of class 10th and class 12th of whichever board you were. And in case you are not yet qualified, मतलब आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, so one thing you have to do, इसमें given है एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प ₹10 का पेपर जो आता है, उस पर आपको प्रॉपर ऐसा लिखना है that you are a student of this and this and your result has not yet came out, and उसके बाद आपको उसको सबमिट करना है. एंड मैं एंड में बताऊंगी कि आपकी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में सेंड करनी है. तो हमारी फर्स्ट हो गई है. फर्स्ट इज़ क्वालिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स. Okay, now let's move on to the second document which is required, that is your birth of date का certificate, and उसके लिए you can use your 12th mark sheet. It is properly given कि 12th की mark sheet का ही यूज़ करना है. Again, in case मेरे टाइम पे मेरी भी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो I used my admit card which was given by CBSE board that I am appearing for the exam. तो it gives a proof, right, कि तुम इस बार एग्ज़ाम में बैठे हो बट आपका रिज़ल्ट नहीं आया है. So you have to attach that in your date of birth again. Now let's move on to the third document which you are required to submit is your category certificate. अगर आप ST, OBC and SC से बिलोंग करते हैं तो आपको अभी तक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा. अगर नहीं है तो आप जाके बनवाइए, बिकॉज आई एम जनरल, तो मैंने तो नॉर्मल से सिलेक्ट करा था, हमारा ऐसा कुछ था नहीं डॉक्यूमेंट्स का. बट इफ़ यू आर ST, SC or BC, so you have to प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट in order to get all the benefits out of it. तो एक वो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ योर सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट, और यू कैन ईदर सेंड द इनकम टैक्स रिटर्न का सर्टिफिकेट. आपके पेरेंट की जो इनकम है, जो सैलरी सर्टिफिकेट है, दैट शुड बी ऑफ मार्च 2023, मतलब दिस ईयर का ही होना चाहिए, करंट ईयर का.
Now let's move on to the last document which you are required to submit is that medical health certificate. उसकी PDF इन लोगों ने अटैच करके दी होगी कहीं ना कहीं निफ्ट में, मुझे अगर साइट में मिली तो आई पोस्ट इट बिकॉज मेरे टाइम पे इट वाज गिवन. सो यू हैव बेसिकली, ऐसा भी कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए, you are required to go to a चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो. एम्स के डॉक्टर के पास जा सकते हो और एनी डॉक्टर विच लोकलाइड आपके आसपास, तो आप जाके उनसे बना सकते हो. पूरी PDF में आपकी कुछ लिखा होता है, आई साइट लिखी होती है, हाइट लिखा होता है, BP लिखा होता है, शुगर लिखा होता है, और ऐसे इट इज़ लाइक कि यू हैव अ सर्टन प्रॉब्लम और समथिंग, सो दैट वो अपने फ्यूचर में उसका रिकॉर्ड रख सके कि स्टूडेंट को ऐसा ऐसे रिकॉर्ड्स थे मेडिकल के. ग्रुप होता है, बस आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराना है. द चीफ मेडिकल ऑफिसर विल टेक 200 रुपीज़. मेरे टाइम पे ही टू 200, सो इट वाज प्रीटी फाइन. तो जल्दी हो जाता है अगर मिल जाए तो. एंड या आई वाज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्मेट में सबमिट करने हैं. तो डॉक्यूमेंट कैन बी सबमिट इन JPG एंड PNG एंड ऑल्सो इन PDF फॉर्मेट. मैं PDF ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज मैंने अपने टाइम पे PDF ही सबमिट करी थी. स्कैन इट विद Adobe एंड और ये सारे के सारे अटेस्टेड विथ योर सिग्नेचर होने चाहिए. अभी मुझे अचानक से याद है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विच यू आर सबमिटिंग आपके पेरेंट का साइन होना चाहिए एंड आपका साइन होना चाहिए. तो आपको सारे के सारे प्रिंट्स ही निकालने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू साइन इट. और जो डॉक्यूमेंट्स में बोल रही थी कि आपका 12th की मार्कशीट है और या फिर वो है, तो अगेन उसकी कॉपी लेके उसको सिग्नेचर करके एंड देन यू ऑल्सो हैव टू अटैच इट. सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. माई टाइम 14 कैंपसेस थे, तो मैंने 14 के 14 अपनी लिस्ट में इंक्लूड करे थे. सो द फर्स्ट वन, क्योंकि देयर इज़ नो हार्म, एज आई सेड, देयर इज़ नो हार्म इन पुटिंग एवरी कैंपस इन योर लिस्ट, बट प्रायोरिटी सेट करके लेना. एट लाइक मैंने अपनी लिस्ट में अटैच कर दूँगी यहाँ पे. मैंने फर्स्ट दिल्ली लिया था, देन मुंबई लिया था, बैंगलोर लिया था नेक्स्ट, फिर गांधीनगर लिया था, उसके बाद मैंने हैदराबाद लिया था, चेन्नई लिया था, कोलकाता लिया था, एंड देन इट वाज पटना, जोधपुर, रायबरेली, भुवनेश्वर, कांगड़ा, कन्नौर एंड पंचकुला. तो ये सारी की सारी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट थी. एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही अपना टॉप कैंपस मिल जाए. फिर रैंक इज़ रियली गुड. एंड इफ़ नॉट, तो हमारे टाइम पे इट वाज, दे सेड ओनली 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग वुड बी डन, बट देयर वाज 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग बिकॉज बच्चे बच जाते हैं, इनकी सीट्स भी बहुत होती हैं. ये तो सारी की सारी बात हो गई जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा ना, अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करी. एंड उसके अब भी आपको एक और छोटे छोटे कॉलम्स मिलेंगे, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर कॉमन मेरिट रैंक, योर कैटेगरी रैंक वगैरह. आपको सारे के सारे सही एंटर करने हैं. प्लीज़ डू नॉट मेक एरर बिकॉज इसके बाद ये चेंज नहीं होता. मे बी आपको शायद प्रॉपर मेल भेजनी पड़ती है. देन आपको दिल्ली का जो कैंपस है, बिकॉज दैट इज़ द हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ से जब मेल वापस आएगा सो फिर आप कुछ भी कर पाओगे बिकॉज वो लॉक हो जाती है. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि फिल करके छोड़ देना है. यू हैव टू लॉक इट गाइज बिफोर 8th में. मैं बोलूँगी 8th में कभी नहीं बोल रही मैं कि 8th में को 12 बजे बैठ के सब लॉक कर रहे हैं. डू इट बिफोर हैंड, डू इट एटलीस्ट 7th में तो करके छोड़ दो. एंड द थिंग इज़, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको आपका कोई भी कॉलेज मिल जाता है, आप तभी एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड के लिए इफ़ यू पे द फीस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर. तो अपने अकाउंट में या फिर जिस भी अकाउंट से आप लोग पे करेंगे NEFT करनी पड़ती है बिकॉज इट वाज लाइक 1,80,000 75,000 1,75,000 एट माई टाइम. एंड अभी मैंने देखा है तो शायद इट्स लाइक 1,80,000. सो प्लीज़ मेक इट वेरी क्रिस्प कि पहले से रखे हुए हैं कि जस्ट जैसे ही आपको काउंसलिंग में मिला तो उसके जो गैप होता है उसके बीच में ही यू हैव टू फिल द फीस एंड यू हैव टू मेक योर सीट सिक्योर एंड ताकि आप वो कर लें. एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड. अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो वो अपने आप फीस वहाँ चली जाएगी. यू डोंट हैव टू डू. आई विल ऑल्सो से कि अगर कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं, ईदर ड्रॉप अ मैसेज मुझे, और सबसे बेस्ट वे है कि सीधा उनको मेल लिख दो. दे रिप्लाई बैक गाइज. दे विल नॉट रिप्लाई यू ऑन सैटरडेज एंड संडे, बट मुझे अच्छे से याद है 2 बजे वो रिप्लाई करते हैं. ठीक है, 2 बजे वो पक्का रिप्लाई करते हैं बिकॉज मैंने जब भी अपने मेल भेजे थे मेरे को 2 बजे ही उनका वापस रिप्लाई आता था.
सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू एंजॉयड इट एंड आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही होगी. एंड मैं सारे के सारे सोर्सेज आपको नीचे लिंक डाउन कर दूँगी. सो या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू कंटेंट यू गेट नोटिफाइड फर्स्ट. एंड या मैं बहुत अच्छे से श्योर हूँ कि सबका हो जाएगा निफ्ट में. एंड या प्लीज़ कम टू निफ्ट मुंबई. आई विल गेट टू मीट यू ऑल. या बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Call it spring, like